देखिए अभी मैं ऊपर ही खड़ा था और कुछ जो इंडिया से बाहर से लोग आते हैं संजय भैया, वो हम लोग को मिल गए हैं, तो उनसे यहाँ ओरछा घूमने के बारे में थोड़ा पूछते हैं और समझते हैं। संजय भैया थोड़ा टॉक करिए आप। यस, नमस्ते, वेलकम टू ओरछा। Welcome. Thank you. Are you from? We are from England. They are from England. Nice country. And how is my town? Your town is Unbelievably Unbelievable. beautiful. I We- mean, we came from Gujarat Yes. this morning, through the smog, and suddenly an oasis. Uh-huh. It was so beautiful when we walked in. Nobody was chasing us, Yes, yes. and we could walk round the wonderful sights. They tell me actually Orcha is very small, not too much pollution, not too much population. Everybody knows everyone. Also people are here very polite. Nobody hawkering here. Ki please come in my shop, come in. Nobody stretch. I think right. nice place, and they are looking very happy to see this town, very small, and monuments are also very nice compared to another place. I tell you, in India there are many monuments, but Orcha is a small town, so you know very well. A small town is a small problem. Big city is major problem. Yes. The people here were very kind, weren't they, today? We were invited to a wedding, Yes. and we were with the groom, the man and his new wife, Oh wow. like this. and invited us And they to join invited their us to the party, and afterwards we meet a christening. Uh-huh. The man with his baby coming to the temple, and again they say, "Come with us." They're so kind, really kind, weren't they? very Really, Orcha, I tell you, because everyone and most of people they are depend on tourism. Yeah. If you are come, is increase my business, increase my everything. So please tell the people come in Orcha, and Orcha is really Of course very we nice. will. yes, Of course we will. and we will On promote it on our everywhere travels. we go. On We our are travels. travelling for 5 weeks, and we will tell everyone to come here that we meet. How nice, how Yes. nice. Really, I'm very happy to meet you. And And, you. And you. Thank you very And good much. luck. Good luck Oh, with this. most welcome, sir. I hope Most it works. welcome. बिल्कुल. Thank Thank you so much. Thank you. Okay, Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you I'm very much. also, I'm not only guide because I am a fellow traveler also. Okay. Fellow traveler also. So thank you very much to give me your time. That's Enjoy your day. Enjoy We your will. Yes. monument. Thank you very much. Thank you. कि अभी यहाँ निकल रहे थे राजा के महल से, तो कुछ बाहर के लोग आए हुए हैं। संजय भैया बात करने लगे, मेरा भी मन हुआ कि चलिए यहाँ के बारे में उन लोगों से भी जानते हैं कि ओरछा कैसा लगा आप लोगों को। जरा संजय भैया पूछिए और बात करते हैं। जय श्री राम, आप सभी को स्वागत है इस राम जी की नगरी में आप लोगों का। और आप सभी भक्त हैं, हम भी भक्त हैं राम जी के, तो भक्त भक्त का मिलाप हुआ है यहाँ पर। तो एक भक्त की ही संज्ञा से हम जो है इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि ओरछा आने के बाद आपका मन कैसा है और कैसा लगा आपको देखकर। बहुत अच्छा लगा। कितनी बार आए आप लोग? पहले आए कभी? जन्म से कई बार आते हैं। वाह वाह वाह, तब क्या भगवान का भक्ति आ सकता है। 54 में पैदा हुआ हूँ, और 54 से कहना चाहिए कि लगभग हर साल 80 तक हर संक्रांति पे, रामनवमी पे या किसी ग्रहण वगैरह पे हम लोग ओरछा आते थे। बाय साइकिल से आते थे, दर्शन करते थे यहाँ आकर के। पढ़ते थे, मन हुआ चलो ओरछा घूमने चले जाते थे। तो ये नगरी हमारे लिए जो देखिए 50 साल पुराने लोग भी हैं जो 50 साल से ओरछा आ रहे हैं बाइसिकल से, साइकिल के द्वारा। मेरी है। ये देखिए, और उस समय से आते थे जिस समय यहाँ पर कुछ नहीं था, जंगल था पूरा सिर्फ राम जी का मंदिर था, किले में बड़ी व्यवस्था थी। उस समय से देखते थे, तो आज के में जो परिवर्तन हुआ है वाकई में सराहनीय है। रतन गान ने जो भी कार्य किया और उसके बहुत अपेक्षा अच्छा है कि किया। और विकास हो। और थोड़ा सा विकास करें तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर सब हमें मंदिर की पड़ेगा। व्यवस्था सुधरनी चाहिए। मंदिर जो है ना एकदम गैदरिंग होता है, वहाँ पर सिंगल लाइन बन जाए ताकि इसलिए आदमी उसको देख सकता है। भक्तों की इच्छा है कि हर चीज़ बढ़िया धीरे धीरे सुधार हो रही है, लेकिन थोड़ी सी और सुधार हो जाए। जैसे कि क्राउड पे कंट्रोल थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, तो क्राउड पे कंट्रोल होने के लिए कोई व्यवस्था कोई सरकार की तरफ से हो सके तो वो होना चाहिए। पुरातत्व विभाग की इन्होंने चर्चा की है, बहुत अच्छी बात की है आपने, क्योंकि ओरछा न केवल प्रसिद्ध महलों के लिए है, मंदिर के लिए भी है, तो दोनों एक दूसरे के संपूरक है। हाँ, क्योंकि लोग जब आते हैं यहाँ पर तो न केवल महल देखते हैं, जबकि राम जी का मंदिर देखते हैं, और राम जी के मंदिर के बाद उन महलों में आते हैं यहाँ पर वो राजाओं का राज चला जो कभी भगवान श्री राम को अयोध्या से ओरछा लेकर के आए महल थे। की एक खूबी भी थी यहाँ से, झरोखा जो था, राम झरोखा,
तो राजा ने कहा कि हम उसको वहाँ से भगवान जाकर दर्शन करेंगे। भगवान ने कहा कि देखते हैं तुम कैसे करते हो। इसके प्रवृत्ति वो वहाँ जाकर बैठे, यहाँ पर मंदिर आज भी खाली पड़ा, मतलब चतुर्भुज मंदिर बन गया वहाँ पर। कितनी सुंदर बात आपके मुखारबंद से निकली है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो जो झरोका इनके मुंह से निकला हुआ है वही राम जी के दर्शन करने के लिए एक्चुअली राजा ने बनाया था। इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको चतुर्भुज मंदिर में जाकर के देना चाहते हैं, ताकि आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि राम राजा मंदिर और चतुर्भुज मंदिर की दोनों की कहानी एक ही है, जो जुड़ी है इस झरोके से जो आपके मुख से वही निकला है। राजा घमंड तोड़ने के लड़का, तो देखते कैसे। आपके माध्यम से हम एक लोगों को गुजारिश करना चाहते हैं, अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे लोग जो है इस जो मॉन्यूमेंट है इसकी महिमा बनाए रखें। यहाँ पे जहाँ तहाँ अपने नाम पते जो आना जाना ये सब चीज ना करें, कि जो इसकी इसका वैभव है, जो इसका वैभव है वो सब मेंटेन रखें। खत्म होता जा रहा है। देखिए, लोग सुने और फॉलो करें कृपया, यही मेरा कहना है। थैंक यू। धन्यवाद भक्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। संजीव, अपन लोग अभी वहाँ से निकल के आए तो भक्तों से बात हुई, इसके बाद थोड़ा सा पानी वानी का मन किया, तो ये जहाँ आ गई ये होटल जलपान करने के लिए ये शीश महल होटल बहुत अच्छी जगह है। हाँ। और इसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। तो ये ऊपर ही बनाया गया संजय भैया? ये बिल्कुल ऊपर बना है। ये कल राजा का गेस्ट हाउस हुआ करता था। अच्छा। इनके जो रॉयल गेस्ट आते थे वो इसमें रुका करते थे। हाँ। और आज मध्य प्रदेश टूरिज्म का ये होटल बन गया है, तो इसमें हमारे गेस्ट आके रुकते हैं। अंतर इतना है, कल ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, आज इसके अंदर पैसे देकर आप रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं ये मानता हूँ कि ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टी आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ पर आप रात्रि में निकल के इस पूरे फोर्ट परिसर का आनंद ले सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि भले आप स्टे के लिए ओरछा नहीं आ रहे हैं, एक बार इस होटल के अंदर बैठ करके खाना खाइए। इसके रेस्टोरेंट का नाम झरोका है और यहाँ पर बहुत अच्छे शेफ़ हमारे पास में जो खाना बहुत लजीज बनाते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म का हर जगह खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी संजय भैया ने जब ये मध्य प्रदेश टूरिज्म में जो ये झरोका वाली बात करी, तो वाकई ये झरोके ही जैसा है संजय भैया। बिल्कुल है। और इसको मैं थोड़ा ऐसे घुमा के दिखाता हूँ लोगों को, और ये इसका क्या नज़ारा है संजय भैया, दिख रहा है? बहुत अच्छा। ये स्पेशल है और वाकई मैं थोड़ा दूसरे एंगल से भी थोड़ा कैप्चर करता हूँ। इसमें ये इस टाइप से ये एमपी टूरिज्म का होटल है और यहाँ पे आके लोग अपना भोजन करें। ये किले के ऊपर ही बनाया गया है। ये पूरा ये देखिए, ये कलाकृतियों से ये इस टाइप से पूरा ये होटल है और यहीं हम लोग अभी जलपान के लिए बैठ गए हैं। बाकी जो यहाँ आके रुकना चाहेगा उसको रात्रि के शाम को एक स्पेशल दर्शन होंगे। थैंक यू। तो देखिए, हम लोग अब राजा के महल से निकल के और वो बाकी चीज़ों को देखते हुए अब जहांगीर महल आ गए संजय भैया के साथ। और जहांगीर महल में ये हम थोड़ा सा ऐसे दर्शन कराते हैं जहांगीर महल के नीचे से। ये ऐसा जहांगीर महल देखिए, आप लोग देखिए, बहुत ज़ोरदार ये दृश्य पीछे का आ रहा है। ये जहांगीर महल है और अब चूंकि ये ओरछा में और जहांगीर महल, इसकी महिमा मैं संजय भैया के माध्यम से पूछता हूँ। और जहांगीर महल इसको क्यों नाम दिया गया इसके बारे में पूछता हूँ, चूँकि राजा तो यहाँ क्यों जहांगीर महल इसका नाम रखा। संजय भैया थोड़ा आप बताएंगे और फिर बाकी जैसे जैसे आप आगे हमें गाइड करते जाएंगे मैं चलता रहूँगा। जी बोलिए। जहांगीर महल का निर्माण 1605 में हुआ था। अच्छा। अभी इतनी बड़ी इमारत आप देख रहे हैं जी। और ये जहांगीर महल यहाँ पर बनाया क्यों गया था, इसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि पहले एक जहांगीर अपने पिता अकबर से बगावत करके भागे थे। अच्छा। तब हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू राजा अच्छा। वो जहांगीर की हेल्प के लिए आगे नहीं आया था। अच्छा। लेकिन एक यहाँ के राजा थे जिन्होंने उनकी हेल्प करने का विचार किया था। अच्छा। क्योंकि यहाँ के राजा को पता था कि आने वाले समय में अकबर अपने बेटे को माफ करेंगे, वापस बुलाएंगे, तो ये भारत के मुगल बादशाह होंगे। अच्छा। तो आज हम इनकी हेल्प करेंगे तो कल को वो हमारी हेल्प करेंगे। यहाँ के राजा ने एक काम और किया था। यहाँ के राजा का नाम बता दूं, महाराजा वीर सिंह देव इनका नाम था और बहुत ही शक्तिशाली राजा रहे हैं। अच्छा। उन्होंने क्या किया, अब्बुल फजल को मारा था। अच्छा। अब्बुल फजल को ग्वालियर के पास मारा था। तो अब्बुल फजल के मारे जाने के बाद अकबर बादशाह ने अपने बेटे को माफ़ी दे दी। जहांगीर के माफ़ी देने के ठीक 6 महीने बाद अकबर बादशाह चल बसे। तो अकबर के मरने के बाद जो भारत के अगले बादशाह थे वो सलीम जहांगीर थे। अब जहांगीर जब गद्दी पे बैठे तब यहाँ के राजा ने इस पैलेस का निर्माण कराया था। जहांगीर को यहाँ पर इनवाइट किया था एक रॉयल गेस्ट की तरह। तो जहांगीर जब यहाँ पर आते हैं तो ये बड़ा बना हुआ महल उनको गिफ्ट कर देते हैं। अच्छा। तब से इस महल को हम जहांगीर महल के नाम से
जानते हैं। अच्छा। और जहांगीर जब यहाँ पर आए, इतना बड़ा महल सॉरी अपने सम्मान में बना देखा तो यहाँ के राजा से काफ़ी खुश हो गए, एक वादा करके गए, कभी भी आपको मेरे हेल्प की ज़रूरत पड़े, हमारे दरबार आपके लिए खुले हैं, पैसे से और सेना से। ये और जहांगीर यहाँ पर खाली एक रात के लिए आए थे, ये बात सही है। और यहाँ से जाने के बाद जहांगीर वापस नहीं आए। जहांगीर के जाने के बाद से पूरा महल खाली पड़ा है। यहाँ किसी हिंदू राजा ने इस महल को अपनी यूज में नहीं लिया, क्योंकि अपने राजपूत राजाओं की एक शान होती थी, दिया हुआ दान हम वापस कभी नहीं लेते हैं। तो ये महल हम जो है वन नाइट पैलेस के नाम से भी जानते हैं। कौन सा पैलेस? वन नाइट पैलेस। वन नाइट मतलब एक रात के लिए जहांगीर यहाँ रुके थे, इसलिए इसको वन नाइट पैलेस बोल रहे हैं। यस। यस। अब इस महल की खासियत इसका आर्किटेक्चर है। जैसे जो गुंबदें आप देख रहे हैं महल के ऊपर चारों तरफ, हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा मुगल आर्किटेक्चर में आता है। जब कभी आप महल के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे गुंबदों के ठीक ऊपर एक कमल का फूल भी है छोटा सा, जो कि हिंदू आर्किटेक्चर में आता है। हम देखते हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में जितने ये स्टेचू ऑफ एलिफेंट लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये थोड़े स्टेचू छोटे हैं तो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर में आता है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, वो मुगल आर्किटेक्चर में आता है। अच्छा। तो हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा से कॉम्बिनेशन इस पूरे महल के अंदर है। हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा जो अंतर देखने को मिलता है वो ये कि हिंदू आर्किटेक्चर के ऊपर ढेर सारे फिगर या आपको आकार मिलेंगे, बट मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर नहीं, क्योंकि हिंदुओं के भगवान का आकार होता है, उनके भगवान का आकार नहीं होता है। इसके सेंटर कोर्टयार्ड में हमें स्विमिंग पूल भी देखने को मिल जाता है। ये स्विमिंग पूल बनाया गया था। इसके चारों कोने पे यहाँ पर जो टैंक्स बने हुए हैं वो सब उनके फ्लावर्स भरने के काम आते थे। अब जहांगीर जब यहाँ पर आए थे तो पूरा महल एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। राजा ने इस पूरे महल में जान डाल दी थी। महल बहुत ही सुंदर है। आप लोग अपने घरों से निकल के आओ और जाके ये महल देखो। वाह। ये जहांगीर महल पे संजय भैया द्वारा बताया जा रहा था, कुछ और विस्तार से जानकारी लेते हैं संजय भैया से। एक एक पॉइंट पे, एक एक जगह पे जाके आपको दिखाते हैं और ये अद्भुत होगा। और ये सारी चीज़ें संजय भैया बड़े अच्छे ढंग से बता रहे हैं मेरे को, तो बहुत खुशी हो रही है। जी संजय भैया बताइए। इस पैलेस को 4 स्टोरी बनाया गया था। इसके 236 कमरे इस महल में हैं, 236। इसका एक पार्ट इसका बेसमेंट है, जो कि उनकी आर्मी के लिए थे। अच्छा। 3 स्टोरी इसके ऊपर है, ये यहाँ पर 136 कमरे बनाए गए थे। अच्छा। ऑल टुगेदर 236 रूम बनाए गए थे। अच्छा। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी हाथियों की स्टेचू देख रहे हैं जी, ये पूरा सैंडस्टोन में बनाया गया है। इस दीवार के अंदर जो काम हुआ है वो ग्रेनाइट स्टोन है। बाहरी भाग में सैंडस्टोन देखने को मिल जाता है। फिर जिस गेट से हम लोग यहाँ प्रवेश लिए थे वो इस महल का मेन गेट नहीं था। अच्छा। इस महल का जो मेन गेट है वो खुलता है पूर्व दिशा की ओर, जहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं ओरछा की प्राकृतिक सुंदरता, जो कि आज हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। माँ की बनी हुई सारी चीज़ों के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ वापस आएंगे। फिर इस महल की एक ऐसी फ़ोटो आपके सामने खींची जाएगी या निकाली जाएगी, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप वहाँ सेंड होगी, तो आप समझ सकते हैं कि महल कितना विशाल है। वाह। चलते आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी ये जहांगीर महल के जो प्रवेश द्वार है वहाँ हम लोग आ गए हैं। और ये प्रवेश द्वार के बारे में थोड़ा संजय भैया से पूरा जानते हैं। तो संजय भैया बताएं, ये हम जो सामने दिख रहे हैं ना बीचों बीच प्रवेश द्वार, और ऐसे बताते हुए यार चलते हैं ऊपर को। ये जहांगीर महल का मेन गेट है। अच्छा, ये देखिए मेन जहांगीर महल का मुख्य दरवाज़ा दिख रहा है, जिसको मैंने पूरा लगाया हुआ है, और ये बीच में दरवाज़ा है। जी संजय भैया। और इसके ऊपर के 2 वहाँ बालकनी बनी हुई हैं। अच्छा। तो लेडीज़ वगैरह खड़े होने के लिए थे कि जहांगीर बादशाह जब वहाँ प्रवेश करेंगे तो फूलों की बरसात वहाँ से करने वाली हैं। अच्छा। और ये रास्ता यहाँ से इस प्रकार से आते थे वो लोग। अच्छा। और ये बेसमेंट में जाने का रास्ता था, अच्छा। क्योंकि आजकल बंद है। अच्छा। उस जमाने में यहाँ पर वो बादशाह की आर्मी रुकी थी। अच्छा। 100 कमरे उसके अंदर बनाए गए थे। अच्छा। और जैसा कि यहाँ पर ये 3 प्लेटफॉर्म यहाँ पर बने हुए हैं अलग अलग। अच्छा। ये 3 प्लेटफॉर्म इसलिए बनाए गए थे कोई हाथी से आएगा अच्छा। तो हाथी उनका साइड में खड़ा होगा। अच्छा। तो उसके ऊपर उतर जाएंगे। अच्छा। दूसरा ऊंट के लिए है, तीसरा घोड़े के लिए है। अच्छा। ये उनके हाइट के लेवल के हिसाब से यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बने हुए थे। अच्छा, इसी में हाथी घोड़े भी चढ़ते थे? ऊपर नहीं चढ़ते थे। अच्छा। खड़े हो जाते थे। अच्छा, साइड में खड़े हो जाते। चढ़ने उतरने के लिए थे उनके। अच्छा। क्योंकि हमारे पास में कोई हाथी ऊंट घोड़ा नहीं है तो हम पैदल ही चलेंगे। और नहीं नहीं, आगे चलिए चलिए। स्टेप के द्वारा। हाँ, ये देखिए मुख्य दरवाजा, जहाँ संजय भैया जा रहे हैं उसके आगे ये मुख्य दरवाजा है। और ऊपर चढ़ के वहाँ के बारे में और थोड़ा विस्तार से दिखाएंगे। हम लोग ऊपर ही आ गए हैं जहाँ ये दृश्य है। ये देखिए
ये मुख्य दरवाजा है, ये मुख्य दरवाजा है। अब इस महल की और गेट की विभिन्न खासियत ये भी है हाँ, कि यहाँ पर एक वो एलिफेंट है, एक हाथी सूंड में घंटी लिए खड़ा है हाँ। और दूसरा वाला लोहे की चैन लिए खड़ा है। ये वाला हाथी सूंड में घंटी लिए है, ये है, दूसरा वो लोहे की चैन लिए है, ये दूसरा वाला लोहे की चैन। अच्छा, तो इसके अलग एक मिनट देखें, ये हाथी के ये लोहे की चैन है और इस हाथी में घंटी है सूंड में, ये देखिए। तो इसका क्या मतलब है संजीव भैया? ये बताते हैं कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ अपने हृदय में दोस्ती लेके आ रहा है, हम उसका बैल बजा के स्वागत करते हैं। यदि कोई दुश्मनी लेके आएगा, हम डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार भी खड़े हैं। सो बुंदेला राजाओं ने दोनों मैसेज ऐसे जो है जहांगीर को दिए थे। अच्छा, जहांगीर को मैसेज दिया था ये? जहांगीर को मतलब जो भी गेस्ट इसमें आएगा उसको अच्छा, ये मतलब मैसेज जो भी इसमें प्रवेश करे और इन हाथियों की तरफ देख ले, मिला, तो समझ जाए कि हम जो मतलब हृदय से आओगे तो स्वागत है और दुश्मनी से आओगे तो जंजीर में बांध दिए जाओगे। वाह। बुंदेलखंड के लोगों के पास में ये दिमाग जो है शुरू से ही है। ऐसे कहा भी जाता है 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। अच्छा, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, मतलब 100 दंडी का मतलब 100 दंडी जो होते हैं, जो संत वाले जो चीजें होती वो हैं, दंडी मतलब वो बाबा लोग जो होते हैं, दंडी बाबा, दंडी बाबा एक वो बुंदेलखंडी। दंडी बाबा में बहुत पावर होती है। उस पावर से ऊपर बुंदेलखंड के लोगों में पावर दिया गया है, जैसे संजय भैया ने एक कहावत के रूप में बताया है कि 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी। यस। और ये रियासत कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। ये हाँ। उस जमाने के सबसे पावरफुल राजाओं की रियासत मानी जाती है। अच्छा। और यहाँ पर अलग अलग राजाओं का जिस प्रकार से नाम आता है, एक महाराजा वीर सिंह देव जिन्होंने अब्बुल फजल को मारा था, एक महाराजा छत्रसाल जिन्होंने बाजीराव पेशवा को बुला के मस्तानी को दिया था। तो एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, एक बड़ी फेमस मूवी रही है। अच्छा। और मस्तानी ये हमारे बुंदेलखंड से ही बिलोंग करती थी। राजा छत्रसाल महाराज यहाँ से छतरपुर चले गए थे। अच्छा। तो छतरपुर जो जगह है वो राजा छत्रसाल महाराज के नाम से है। और धोबेला में उनकी सारी चीजें देखने को मिल जाती है। कभी टाइम मिले तो धोबेला भी देख करके आप आना। धोबेला में बुंदेलखंड का बहुत ही सुंदर एक म्यूजियम भी देखने को ये मिल जाता है। धोबेला कहाँ है संजीव भैया? धोबेला जो है वो छतरपुर के रास्ते पे है और यहाँ से जो है अराउंड 100 किलोमीटर की दूरी पर है। छतरपुर के रास्ते पे तो खजुराहो वगैरह जब जाते हैं, हाँ हाँ, तो खजुराहो जो है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। और 300 साल जो राजा ने शासन किया था, इसके बाद राजा यहाँ से टीकमगढ़ चले गए थे। तो टीकमगढ़ बुंदेलखंड की तीसरी कैपिटल बताई जाती है। अच्छा, हम इस तरफ नजर डालते हैं तो सामने कुछ प्राचीन मंदिरों को देखते हैं। ये हाँ, इन मंदिरों के अंदर पूजा नहीं होती है, आप बाहर से पता लगा सकते हैं। इन टेम्पल्स के ऊपर कोई फ्लैग नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जिन मंदिरों के ऊपर ध्वजा का होना है तो उसके अंदर पूजा होती है, ध्वजा नहीं है तो पूजा नहीं होती। ये देखिए, हमने पूरा जूम किया तो एक टेम्पल दिख रहा है और इस टेम्पल के ऊपर ध्वजा नहीं है, इसलिए इसमें कोई पूजा नहीं होती। लेकिन पहले तो संजय ये बनाया गया होगा ये मंदिर, तो पहले पूजा होती रही होगी। बिल्कुल पूजा होती थी। मंदिर के अंदर इन मूर्तियों को ब्रिटिश टाइम से ही निकाल के राम राजा मंदिर में रख दिया है। अच्छा। तो आपने राम राजा मंदिर के अंदर भगवान श्री राम के अलावा और भी मूर्तियों के दर्शन किए होंगे। तो वो मूर्तियां कहीं बाहर से नहीं बुलाई गई, इन्हीं टेम्पल्स की खाली करा के एक जगह वो मूर्तियां रखी हुई हैं। राम राजा अच्छा। टेम्पल में बनवासी हनुमान जी हैं, अच्छा। पंचदेव महादेव हैं, कृष्ण भगवान है, राधा वल्लभ जी है। ये सारे जो भगवान की मूर्तियां हैं ये बाहर से नहीं बुलाई गई, इन्हीं मंदिरों को खाली करके एक जगह रखी हुई हैं। अच्छा, यही मंदिरों की मूर्तियां पूरी भगवान राम राजा सरकार के बिल्कुल, मंदिर के बिल्कुल, अंदर आ गई हैं। अंदर आ गई हैं जी। तो काफी सारे गेस्ट हमें ये कहते हुए मिले हैं कि संजय भला हो, क्योंकि हमारी एक एज हो चुकी है। ये मंदिरों में अलग अलग जगह मूर्तियां होती तो हमें थकावट होती उन सब जगह पहुंचने में। अब राम राजा सरकार के मंदिर में एक जगह ही सारे भगवान के दर्शन हमें हो गए। लेकिन संजय मेरे मन में अभी कुछ जिज्ञासा है और मैं एक दिन गया भी था इधर। जैसे ये जो मंदिर दिख रहा है इधर एक, जिसको मैं जूम करके देख रहा था, ये मंदिर में नाम तो लिखा हुआ है, जैसे शिव मंदिर है, राधा मंदिर है और बनवासी राम मंदिर है, पंचदेव महादेव मंदिर है। और ये इधर बेतवंती मैया पीछे बह रही हैं। तो और ये एक प्लेस दिख रही है संजय भैया, ये एक छोटा सा महल डांसर के लिए बना था इसका हाँ हाँ, जो अभी आपने अंदर बताया। बिल्कुल। तो ये राय जो कौन सी राय थी? प्रवीण थी। राय प्रवीण थी। और बहुत ही ये राय प्रवीण का महल है। सुंदर नृत्यकी थी। ओडिशा के जो राजकुमार थे इंद्रजीत सिंह, उनकी वो प्रेमिका थी एक्चुअली। अच्छा। और कहते हैं इसे अकबर के दरबार में बुलाया गया था। और जब ये अकबर के दरबार में जाती हैं तो उन्हें झुक करके प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि मुझे आपसे एक प्रार्थना करनी है। अच्छा। अकबर कहते हैं बोलो क्या कहना चाहती हो। अब ये राय प्रवीण चूंकि बहुत अच्छी कवित्री थी, अच्छा। तो उन्होंने अपनी पूरी प्रार्थना को एक कविता के लहजे में कहा था, जो इस प्रकार से है कि बिनती राय प्रवीण की
सुनिए साहे सुजान, झूठी पातर भगत हैं, बारी बायस सुहान। ये दोहा खत्म होने के बाद अकबर बादशाह ने उस डांसर को ओरछा वापस भेज दिया था, क्योंकि इसकी मीनिंग ये होती है कि राय प्रवीण आपसे एक विनती कर रही है, सुनिए साहे सुजान, आप भारत के सम्राट हैं, आप बादशाह हैं, आप सुने, मैं एक झूठी पत्तल के समान हूँ। उसकी मीनिंग आप समझ गए होंगे। और झूठी पत्तलों को खाना केवल कुत्ते कौओं को शोभा देता है। वो आप भारत के सम्राट हैं, तो आपके सामने झूठी पत्तल पेश है, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? दैट्स वाई रीजन कि अकबर बादशाह काफ़ी क्लेवर थे। वो नहीं चाहते थे कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम कुत्ते या कौआ कहलाएं। उनको वापस भेज दिया। राय प्रवीण जब यहाँ वापस आती हैं तो यहाँ के राजा काफ़ी उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर उनके लिए राजकुमार छोटा सा महल बनाते हैं रहने के लिए। इसका नाम राय प्रवीण महल पड़ जाता है। ये देखो जो चमक रहा है धूप से, ये राय प्रवीण महल है, जिसके बारे में संजय ने बड़े अच्छे से डिफाइन किया है। ये यहाँ की नर्तकी थी राय प्रवीण जी, और उनके लिए राजा ने स्पेशल बनवाया था। और यहीं से आप लोगों को दिख रहा है, ये मंदिर के, ये जो है ओरछा किला के बगल से रास्ता है इसकी। और उस साइड और भी चीज़ें हैं जो शायद अगर जा सकेंगे तो बताएंगे। संजय भैया आगे कंटिन्यू। और अब इसके अंदर जाकर के इस महल की आपको ग्रांड फोटो खींचनी है। इससे पता अच्छा। लगेगा कि महल कितना बड़ा है, भव्य है। अच्छा। और उसके बाद से ये राजा महल है, जहांगीर महल, यहाँ पर ये फोर्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद चलेंगे हम टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले जाना रहेगा हमारा चतुर्भुज मंदिर, जहाँ से राम राजा सरकार की आपको कहानी सुनने के लिए मिलेगी। और फिर चलेंगे हम लक्ष्मी टेम्पल, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, जहाँ से पूरा ओरछा का दर्शन आपको होगा। फिर लास्ट में चलेंगे हम छतरियों पर। छतरियों पर लास्ट में इसलिए जाते हैं क्योंकि छतरियाँ लास्ट में ही बनी थी। और छतरियाँ बनाई क्यों गई थी, इसके बारे में जगह हम छतरियों के पास जाके करेंगे। और लास्ट में बिल्कुल हमारा जो है बेतवती गंगा का किनारा होगा, और वहाँ से एक अद्भुत व्यू आपको जो है जंगल का देखने को मिलेगा। तो अभी ये देखिए जहांगीर महल के मुख्य दरवाजे से संजय ने पूरा यहाँ का आगे का विस्तार से बता दिया है, जहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ। और मेरा ये भी है, संजय भैया बड़े विस्तार से बाकी चीज़ें बताई, और मेरे मन में एक ही चीज़ है अभी फिर, और उस पर भी मैं आपसे पूछना चाहता, यहाँ ये जो अभी भी किला है, और किले के आसपास कोई हनुमान जी नहीं बैठे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी हमसे। वैसे तो इस पूरे परिसर के अंदर काफ़ी जगह हनुमान जी के मंदिर हैं, लेकिन एक हनुमान जी का मंदिर इस जहांगीर महल के अंदर भी बना हुआ है, मेन कोर्टयार्ड में है। और हम चल के वहाँ पर जा सकते हैं और देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर बनाया क्यों गया था, उसके बारे में हम वहाँ से विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, क्योंकि ये इतना अगर सब कुछ, अगर कोई चीज़ संभव है इतने 500 साल पुराने से इस किले की रक्षा या जो भी हो रही, बिना हनुमान जी के संभव नहीं है। और चूँकि मेरा चैनल स्पिरिचुअल है और हनुमान जी से रिलेटेड है, तो मेरे मन में 24 घंटा वही दृश्य आता रहता है। तो मेरे मन में ये उत्कंठा हुई, तो अभी हनुमान जी के मंदिर में चल के यहाँ किले के हनुमान जी जो भी होंगे उनके बारे में भी संजय जी से जानते हैं और भगवान के आपको दर्शन कराते हैं। जय जय सीताराम। देखिए अभी हम लोग जहांगीर महल के बाहर मुख्य दरवाजे से जहांगीर महल के अंदर आ गए हैं, और मेरे मन में उत्कंठा हुई थी कि हनुमान जी महाराज कहीं नहीं है। तो ऐसे तो संभव नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा ये किला है और कोई बिना भगवान के संभव नहीं है। तो ऐसी जो भी पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, वहाँ कहीं ना कहीं भगवान हैं, हनुमान जी के रूप में हैं। और इस यहाँ भी मन में आया, तो अभी संजय भैया ने बताया कि हनुमान जी विराजे हुए हैं जहांगीर महल के अंदर ही, तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। देखिए जहांगीर महल, और जहांगीर महल के चारों तरफ से मैं ऐसे कर रहा था, और हमारे पवन वहाँ पहुँच गए हैं, और ये हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये देखिए हनुमान जी महाराज की एकदम प्राचीन प्रतिभा, मुख्य मतलब ये जहांगीर महल के अंदर ही हैं, और हनुमान जी विराजे हुए हैं, इसीलिए ये किला सुरक्षित है। इतना पुराना, 500 वर्ष पुराना। तो पवन, हनुमान जी महाराज के दर्शन हो गए तुम्हें? बहुत बढ़िया। और कृपा सब पे बनाए रखे, और जो भी यहाँ आए जहांगीर महल में हनुमान जी के दर्शन करें। और मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम हनुमान जी पे भी अपना ब्लॉगिंग शुरू किए थे, और ये हनुमान जी ही बुलाते हैं जहाँ जाते हैं। और बोलिए थोड़ा सा। जी, जहांगीर महल में अपने हनुमान जी का जो मंदिर बना हुआ है, असल में इसको लेकर के यहाँ पर बनाया गया था
कि रात्रि में यहाँ पर कोई जो वॉचमैन वगैरह रहते थे उनको बड़ी असुविधा होती थी, निगेटिव एनर्जी है या जो भी चीज़ें हैं उनको काफ़ी इसका सामना करना पड़ता था। अच्छा। काफ़ी सारे लोग जो है इसमें रात्रि में नहीं रुकते थे। अच्छा। ये बात सही है कि इतना बड़ा महल है और खाली कोई बंदा वहाँ पर कोई बैठा हुआ है, तो ये तो स्वाभाविक है कि बचपन से हमने जो है काफ़ी सारी भूतों की कहानी सुनी है। और जब अकेले होते हैं तो भूत तो ख्याल हमारे मन में आता है। तो पता ही आपको कि भूत प्रसाद निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो यहाँ पर हनुमान जी की प्रार्थना कराई गई, मंदिर बनाया गया, उसके बाद से यहाँ पर कोई अलावला कभी आई नहीं है। अच्छा। और रात्रि में यहाँ पर खूब वॉचमैन जो है स्टे करते हैं और राम ऐसी कृपा हनुमान जी की है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम समस्या न उस समय में आई जब वो थे न आगे आएगी। अच्छा, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये देखिए जहांगीर महल के बाहर आ गए और ये जहांगीर महल का ये पूरा दृश्य जो है ना, एक ऐसा विजुअलिटी है जहाँ से खड़े होकर हम ले रहे हैं और आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और अभी एक जगह और सेंटर पे खड़े होकर हम फोटो सेशन भी करेंगे और वो भी आप लोगों तक पहुँचाएंगे।